आ गया रे। फिर देखो ऐसा ही लेट हो चुका है, मेरे घर में लाइन नहीं है और तुम लोग और डिस्टर्ब करोगे। रेस्पिरेशन इन प्लांट। Exchange of gases take place through stomata and lenticel. Lenticel that is present in the plant also help in exchange of gases. What is lenticel? Lenticel are pores present on stem of the plant. Very small pore like the stomata, it is present on the stem of the plant. Through which the exchange of gases takes place. Exchange of carbon dioxide and oxygen takes place. Next, respiration in animal. In a small animals, exchange of gases takes place by diffusion. Very small like the amoeba, and amoeba like other organisms, they respire by diffusion. Through diffusion, air goes inside the body, and whatever waste product form that is get right from the body during diffusion. Hydra, also very small organism like amoeba. Amoeba only unicellular, but Hydra is multicellular. It also takes the oxygen through the diffusion, and carbon dioxide goes out by the diffusion process. In the earthworm and leech, a skin is the organ for exchange of gases. In earthworm, all of you have seen in the rainy season how the earthworm having the moist skin, a skin full of moist. And yesterday also. Yesterday also, because it is raining for the 2 or 3 days now. That's why Also 2 days. 2 days. So earthworm live in soil. When their house filled with the water, they come out from the soil. So we can see the earthworm in the rainy season. So earthworm and leech exchange gases through the moist skin. Their skin is a rich supply of blood vessels. Just beneath the skin, many blood vessels are there, and through this, exchange of gases takes place. In the fish, prawn, and crabs, the respiratory organ are gill. As all of you are knowing, gill is a special organ that can isolate oxygen from water. Water having dissolved oxygen, now oxygen gas slightly soluble in water. So and carbon dioxide also. So these organisms like the fish, prawn, crabs, they live in water, and they having a special organ that is known as gill. Through gill, they capture oxygen from water. Oxygen rich water enter through the mouth, and oxygen deficient water live through the gill. They open their mouth, and water come inside the mouth, and this mouth pass through the gill. There the capturing of oxygen takes place, and the
oxygen deficient water come out through the gill. If you have yes, seen the fish, and if the fish come in your house, you must see the gill. Aperture. You can see the photograph have given in 107 page number. Where is the gill present in the fish? Yes, ma'am. Some animals, like other animals, like insect, have network of branch tube called trachea for respiration. Insect having trachea, through this they respire. Trachea open on the surface of their bodies through the pore, and through the trachea, through the pore, oxygen is taken in and carbon dioxide taken outside. Some animals have various very well developed spongy organ called lungs that we have. All of we have lungs for respiration. In mammal, a structure like diaphragm and the rib cage support the process of breathing. And all of you have seen the ribs in cows, dog, and a small baby, how it moves ups and down when they are Yes, ma'am. sleeping condition. Now respiration in human. How it happened, I have explained one day, and again I'm explaining. Respiration in human. When the human take the oxygen rich air and give out the carbon dioxide rich air, that is known as respiration. It is external process. Taking in the oxygen rich air and giving out the oxygen rich air. It is external process of respiration. And this process is known as breathing. Taking in air that is rich in oxygen, this process is known as inhalation. Inhalation. Oxygen is oxygen rich air, not only oxygen rich air taken inside our body. And exhalation. इसमें एयर बाहर आता है. In exhalation, air rich in carbon dioxide. Air rich in carbon dioxide come out. So breathing are divided into two parts, inhalation and exhalation. Now diaphragm. It is a muscular partition which separates our chest cavity from the lower abdominal cavity. All of you can see the diaphragm here. All of you have. हंसो नहीं खुशी, पढ़ना है, समझना है, बॉडी को एक मशीन समझना है ना? बॉडी क्या है? जब मशीन नहीं समझेंगे, बॉडी को मशीन ही समझ के पढ़ना है. यस मैम. हाँ, तो यहाँ सभी टच करके देख सकते हो डायफ्राम है, और उसी के नीचे देखो एब्डोमिनल कैविटी, इसमें कुछ भी नहीं है. मसल से फिल्ड है एब्डोमिनल कैविटी. तो ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम सेपरेट द चेस्ट कैविटी and the lower abdominal cavity. The chest cavity is surrounded by rib cage. सभी देखो, सबके पास रिब केज है ना? देखो ये केज फॉर्म ऑफ रिब्स है ना, रिब केज. और the lungs are located in the chest cavity. अब इसी अंदर देखो कितना भगवान कितना बढ़िया इंजीनियर है
कि इसी में देखो सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है लंग्स, और दूसरा इम्पोर्टेंट क्या है, हार्ट। दोनों डेलिकेट ऑर्गन जो है प्रोटेक्टेड है इनसाइड द रिफ केज। ये ब्रेन भी इससे प्रोटेक्टेड है, ये देखो हार्ड स्कल से प्रोटेक्टेड है ना, स्कल से प्रोटेक्टेड है, और ये रिब से प्रोटेक्टेड है, हार्ट एंड ये तुम्हारा वो लंग्स। कैसे लंग्स में एयर जाता है, एक्सचेंज कैसे होता है, ये तो पूरा हम एक दिन पूरा क्लास लिए थे ना, ये तो सबको पता होगा। कि इनहेल किया, when we inhale the air rich oxygen, then air goes to the lungs and it ultimately go to the spongy sac like a structure that is known as air sac. Yes, ma'am. Air is remains in the air sac. Air sac surrounded by the blood vessels. When the air reach in oxygen go inside the air sac, blood vessels take the air that is rich in oxygen and give out air rich in carbon dioxide. This process takes place through the diffusion. This process takes place through the diffusion. बिना सर से पूछे थोड़ी ना लिखते थे, हम सर से बोले थे सर जो चैप्टर आपने खुशी के माइक से आवाज आ रही है। हाँ, वो सभी को म्यूट कर दिए हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं, और फिर कुछ नहीं सुनेंगे तो ये अच्छा बात नहीं होगा। तो ये जो है देखो, अल्टीमेटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस in the lungs, it also takes place through the diffusion due to different in the concentration of the oxygen and the carbon dioxide, where the concentration of oxygen is more in the air sac. Freshly inhaled air having the concentration of oxygen more, whereas the blood vessels having the air which have concentration more carbon dioxide. Carbon dioxide having more concentration. Due to different in the concentration of oxygen and carbon dioxide in the air sacs and the blood vessels, exchange of gases takes place. Carbon dioxide diffuse inside the air sac, whereas air rich in oxygen diffuse inside the blood vessels. It is the mechanism through which exchange of gases takes place in the lungs. Now, number of times a person breathes per minute is known as breathing rate. Breathing rate differ from organism to organism. It also differ in one organism during the different work. It also differ in one organism like the human according to their lifestyle. What is breathing? One breath is one inhalation plus one exhalation. In adult, normally breathe from 14 to 20 times per minute. Adult breathe 14 to 20 times per minute, but after vigorous exercise can raise the rate up to 80 breath per minute. Who will explain ki, raise your hand, why after vigorous why after exercise we breathe about 80 breath per minute? Who will explain? Sanvi Sharma, explain it. Yes, ma'am. Ma'am, when we do exercise, our muscles start respirating anaerobically, and to break that lactic acid, we then breathe fastly aerobically, and then we breathe very fastly to take
take more amount of oxygen and break that lactic acid. Very good. After exercise, we required more and more amount of energy. And for taking this energy, we should have large amount of oxygen for breaking down of glucose. And that's we respire more about the 80 breath per minute. Next question. Just wait, Anima and other student. I will ask just recently. A child rate of breathing at rest is faster than that of an adult at rest. A newborn baby has rate of about 40 breaths per minute. Anima Sharma, why it is so? Why the newborn baby having breath more than 40 breaths per minute? Anima Sharma, you are unmuted now. Anima. Anika Singh, can you answer it? Anika Singh. Yes, ma'am. Why newborn baby breathe 40 breath per minute, whereas in the adult, Ma'am, because they need. Why? Ma'am, because they need more amount of oxygen than the adult peoples. Why it is so? Why? Ma'am, I don't know. A small baby breathes 40 minutes per 40 breath per minute because they require more amount of energy. And all of you can see how the baby sprawl and they boost up their hand and legs, and they have to grow fast and fast. For the growth, their growth will be proper, they require energy. For all the biological, biochemical work that is taking place inside the body of the baby, they require energy. And that's why a small born baby take 40 breaths per minute for fulfilling their requirement of energy and for their growth. In general, small animals have faster breathing rate than the larger animal. Who will explain this question? Aprajita, you are unmuted now. Aprajita. Yes, ma'am. Ma'am, please repeat the question. Why small animals breathe more than us? More than us means 14 to 20 times breath per minute. A small animal. A small animal having breathing rate faster than the other larger animal. Why it is so? The small animals breathe faster than other big animals because small animals such as mice have more active energy in their bodies, working at a faster pace to produce energy and heat. This is also translated into a faster heartbeat and breathing rate. Very good. They are a small and they take one example of birds. They have to fly from one place to another place. They require more amount of energy, so their breathing rate is faster than ours. And then they only have 2 chambers of the heart to provide more energy. It is the one reason. The purification takes place slower than us. We have 4 chambers and big lungs. Lungs having the capacity for holding the air more in compared to them, and in compared to the small animals. So the purification takes place in the human being in compared to birds in large amount. Purification of blood.
loading of oxygen inside the blood. So that's why they required more breathing than us. A rat breathes out 60 times per minute, while a horse breathes only 12 times per minute. Now, mechanism of breathing. I want to you make a model for showing the breathing by taking the two balloon. Whenever you will search on the YouTube, it have given to how to make the lungs, and how you will show the breathing, inhalation and exhalation. So it is locked down and you मैम have ये ह्यूमन बॉडी का, मैम ये ह्यूमन, हाँ मैम और ये ये ह्यूमन बॉडी का वो बनाना। हाँ बनाना है, और आपका लॉकडाउन है, आपके पास बहुत टाइम है, टाइम का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन बनाना है, ठीक है ना, समझने के लिए। मैम मेरे पास अभी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। हाँ, तो वो टाइम का लिमिटेशन नहीं है, हम कहाँ बोल रहे हैं टाइम का लिमिटेशन नहीं है, लेकिन बनाइए, सीखिए। हाँ, कि जैसे भी मैम ब्रीथिंग, मैम उसका पूरा ब्रीथिंग और मैम उसका रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाना है मैम, ये मैम ब्रीथिंग सिस्टम बनाना है। हाँ, केवल ब्रीथिंग सिस्टम, केवल ब्रीथिंग सिस्टम, और ये YouTube पर बड़ा अच्छे से दिया हुआ है, आप देखिए। कभी जब इंटरनेट का जरूरत नहीं है, जैसे संडे में बस 3 टेस्ट देना है, उसके लिए तो ज्यादा इंटरनेट की आवश्यकता नहीं है, नहीं ना है। मैम कल तो मैम टेस्ट नहीं है ना? कल टेस्ट अभी तक तो आया नहीं, कल टेस्ट का देख लेते हैं, अभी हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि मेरे घर लाइन कटा हुआ है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है, बहुत सारा प्रॉब्लम इस वेदर के वजह से हो गया है। वेदर तो बढ़िया हो गया है, प्लेजेंट हो गया है, लेकिन जो है प्रॉब्लम भी आ गया है उसके साथ साथ। यस मैम, लाइट आ रही है, जा रही है। हाँ, अब इसको हम बताते हैं, सभी पढ़ लेंगे तो फिर हम नेक्स्ट डे इसको बताएंगे, क्योंकि इसको समझना है, इसको ऐसे ही पढ़ के बताना नहीं है, और न ही अपने आप अधूरा ज्ञान लीजिए। जैसे डिफ्यूजन को एकदम डिटेल्स में बताए थे, उसी तरह से इसको। अब यहाँ देखिए क्या है कि वैक्यूम कैसे क्रिएट होगा। सबसे पहले वैक्यूम क्रिएशन, ये जब भी हम ये लेते हैं, कैसे हमारे ऑटोमेटिक ये क्यों होता रहता है, एयर इनहेलेशन एक्सहेलेशन क्यों होता रहता है। तो ये जो है ना डायफ्राम, और जो है डायफ्राम से रिब्स से अटैच है वो हमारा लंग्स, और रिब्स और लंग्स के बीच में मसल्स है, वो अटैच करके रखा है। अब जब ये डायफ्राम में जो है हम रबर रखे हैं, नेक्स्ट डे हम जरूर लेकर के ये करेंगे, अभी तुरंत ये नहीं रख सके, लाइन कटा हुआ था, हमको लगा लाइन नहीं आएगा। ये सपोज दैट ऐसा हम बनाएंगे, अभी सील लेंगे इसको दिखाने के लिए। अगर देखिए सब लोग ये पेन ही को देखिए, मेरे तरफ सभी पेन को देखिए। अगर ये पेन है और ये पेन जो है ऐसे इसका एक्सपेंशन हुआ, तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो कुछ तो भरना है, सभी पढ़े हो, इसीलिए वो एयर का कैसे मूवमेंट होता है, यहाँ कुछ नहीं है। अगर ये एक्सपेंशन हो गया, ये मूव हो गया, ये प्लेस इतना आ गया, वैकेट प्लेस, इवैकेटेड प्लेस, खाली जगह, तो इसको भरने के लिए क्या होगा, कहीं से एयर चलेगा। ये सब लोग पढ़ चुके हो एक चैप्टर में, हीट चैप्टर में। तो यही होता है, क्या होता है, डायफ्राम है, ये ऐसे है, एब्डोमिनल पर्सन वोल्स, सभी को हम दिख रहे हैं, विजिबल है। हम एक ये बना करके रखेंगे कैसे, कपड़ा से, ये लंग्स है, ये डायफ्राम है, और ये डायफ्राम ऐसे अटैच है इसके ऊपर, मेरे हाथ के ऊपर ये लंग्स ऐसे अटैच है, इस तरफ भी एक लंग्स ऐसे अटैच है। हाँ, तो ये डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ। रविशंकर इधर देखो, फिर मैकेनिज्म को पढ़ाएंगे, पहले एकदम मोटा मोटी देखो और तब उसके बाद पढ़ाएंगे। ये लंग्स, ये हाथ के ऊपर ये लंग्स अटैच है,
इस हाथ के ऊपर भी लंग्स ऐसे अटैच है, दोनों लंग्स ऐसे अटैच, और ये डायफ्राम है। तो देखो तो डायफ्राम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो इसके साथ मेरे हाथ के साथ दो अटैचमेंट है लंग्स का, उसका एक्सपेंशन होगा ना। तो एक्सपेंशन हुआ तो उसको, एक्सपेंशन हुआ मतलब जगह ज्यादा बना, तो जगह जब ज्यादा बना तो उस जगह को फील करने के लिए बाहर ये दोनों नॉस्ट्रिल से तुरंत एकदम फोर्सली एयर उसमें चला जाएगा, उस जगह को फील करने के लिए। जैसे हम लोग के यहाँ स्ट्रॉम अभी हुआ था ना, इसलिए कि पटना का प्रेशर वेरी लो हो गया था, बहुत लो हो गया था, तो उसको फील करने के लिए आसपास के एरिया से जो है एयर चला था फील करने के लिए। तो वैसे ही लंग्स में जब वैक्यूम क्रिएट हो गया, जैसे ही डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन हुआ, there is expansion of the lungs and then the air force inside the lungs. As soon as there is expansion of the diaphragm, then there is contraction of the lungs, and the whatever air that is present in the lungs, that is rich in carbon dioxide, that is come out through the nostril. It is the mechanism of inhalation and exhalation. Now, do you know why do you yawn? ऐसे जम्हाई लेते हैं ना, ऐसे करके मुंह एकदम बड़ा सा मुंह करके, हाँ, जम्हाई लेते हैं। क्यों लेते हैं? When you are sleepy or drowsy, the lungs do not take enough oxygen from the air. This causes an increase in carbon dioxide in your body. The brain senses this increase and send a message and causes you to take a deep and long breath. And this is long breath is called yawn. It brings in oxygen and decrease the carbon dioxide content in blood. क्या है कि जब लाइन आया भी है तो वोल्टेज बहुत कम है, इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है। लैपटॉप जहां लगा हुआ था वहां आग निकल रहा है। चलो अच्छा, क्या पूछना है अपराजिता? चल पूछो जल्दी। मैम मैं एक ऐसा कर सकती हूँ, सबसे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए पीछे रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम होगा, उसको मैं काट लूंगी और उसको कूट पे चिपका दूंगी। मैम फिर साइड साइड जहाँ पे दो लंग्स बनाऊंगी वहां पे बैलून को काट काट के लगा दूंगी और उसमें पाइप कनेक्ट कर दूंगी। और जैसे ही मैं पाइप में फूकूंगी तो दोनों बैलून फूलेगा और फिर जब उसमें से उसको फूकना बंद कर दूंगी वापस वो सिकुड़ जाएगा, फिर फूलेगा। मैम वैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम दिखा सकती हूँ? हाँ, ये काम करना, ये दो ऐसे ये ले लेना, ये कूट जो भी है तुम्हारे घर में अगर है, और दो बैलून ले लेना, ये यहाँ पे चिपका देना। हाँ, तो इससे क्या है कि इसका कॉन्ट्रैक्शन होगा तो देखोगे कि वो बैलून जो है क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। जब ये एक्सपेंशन होगा तो बैलून कॉन्ट्रैक्ट होगा, और जैसे ये इसको क्या है, इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाएंगे, ये एब्डोमिनल पोर्शन ऐसे जब आएगा तो इसके साथ साथ खींचा हुआ बैलून भी बड़ा हो जाएगा। हाँ, तो बड़ा हो जाएगा तो वैसे ही एयर उसमें आ जाएगा। तो ऐसा करके ये दो बैलून अगर घर में है तो आने तो मॉर्निंग में तुम लोग के पास तो समय अगर हो, चाहे लॉकडाउन में नहीं जाना, देखना घर में किसी के बर्थडे के बाद बचा हुआ है बैलून तो उसी का यूज करो, या उसी टाइप का कुछ दूसरा चीज जिसका इम्प्लांटिंग हो सके, जो फूल सके। चलो प्रतीक, हाँ प्रतीक बोलो। यस मैम। हाँ मैम डायफ्राम के बिना रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो सकता।
अच्छा, डायफ्राम के बिना रेस्पिरेशन प्रोसेस नहीं हो सकता। तब हम लोग को वो उसके जैसा करना होगा। तब भगवान इतना बड़ा इंजीनियर है ना, हम लोग को ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होता है, इसलिए ज्यादा वॉल्यूम में ऑक्सीजन इनहेल करते हैं। तो फिर अगर वो नहीं होगा तो स्किन के थ्रू हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे एडेप्टेशन चाहिए ना। मेरे इसके फंक्शन में चेंजिंग धीरे धीरे आएगा। जैसे ये स्वेटिंग का काम कर रहा है, तो तब वो ऑक्सीजन डिफ्यूजन का काम करने लगेगा। अब अभी लेकिन संभव नहीं है, उसके बिना नहीं संभव है। किसी तरह एयर का इनहेलेशन चाहिए, जो कि बिना डायफ्राम का संभव नहीं है। लंग्स को एक्सपेंड करेंगे और लंग्स के बीच पार्शियल जो है लो प्रेशर बन जाता है। और लो प्रेशर सबको पता है, हीट चैप्टर में हम पढ़ा चुके हैं। जैसे ही एक्सपेंशन हुआ, लंग्स फैला, ये देखो ये डायफ्राम है और इससे अटैच है ये, और ये लंग्स है, ये लंग्स है। अब ये डायफ्राम देखो, अगर ये डायफ्राम अभी ऐसे है, अगर ये ऐसे आ जाता है, इसका कंडीशन ये हो जाता है, ये आ जाता है कंडीशन, तो ये वॉल्यूम तो इंक्रीज कर दिया ना, और ये वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया, तो ये दोनों का अटैचमेंट जो है यहाँ विंड पाइप देखो, ट्रैकिया, ये देखो ब्रंकियोल और विंड पाइप, इससे अटैचमेंट है ना। तो ये जैसे ही वैक्यूम लो प्रेशर यहाँ क्रिएट हुआ, जैसे ही लो प्रेशर क्रिएट हुआ, तो ये बाहर से एटमॉस्फेयर में तो हाई प्रेशर है, एटमॉस्फेयर में एयर है, तो एकदम इक्वलाइज करने के लिए, प्रेशर इक्वलाइज करने के लिए यहाँ से क्या होगा, एयर जो है विंड पाइप से इनफोर्स होगा इनसाइड द लंग्स। नॉस्ट्रिल से हम लोग एयर लेंगे और फिर यहाँ आ जाएगा लंग्स में, और फिर ब्लड वेसल्स जो है वो ले लिया, फिर एक्सचेंज होकर के इसमें फिर भर गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करने के लिए ये जो लंग्स जो है, फिर क्या होता है, लंग्स डायफ्राम का फ्लैटिंग होता है। डायफ्राम जो इस कंडीशन में आ गया, ये कंडीशन में, तो क्या हो गया, प्रेशर हाई प्रेशर हो गया। अब ये डायफ्राम जो है, तो लंग्स जो है, जो भी एयर था, ये किस प्रेशर में हो गया, हाई प्रेशर में। हाई प्रेशर, हाई प्रेशर में होने से ये जो प्रेशर हाई हुआ और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, तो तुरंत यहाँ से क्या होगा, बाहर चला जाएगा। कौन सा एयर, एयर रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, यही प्रोसेस है। तो देखो ये और हेल्प तो करता है डायफ्राम, तो इसको कोई फैलाने और हम लोग तो फैलाने जाते हैं अपने लंग्स को, नहीं ना, ये डायफ्राम ही मदद करता है, हेल्प करता है कि एक्सपेंशन हो और कंट्रैक्शन हो, इसलिए इसका इम्पोर्टेंस तो है अभी। अब वो अलग बात है, हम लोग स्किन से अपना करने लगेंगे, लेने लगेंगे, तब उसका जरूरत नहीं पड़ेगा। मैम, हाँ बोलो मैम, और कभी कभार हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग सांस लेते हैं तो वो कभी कभार मुंह से भी ले सकते हैं मैम, वैसा क्यों होता है? मुंह भी तो कनेक्टेड है विंड पाइप से, नहीं, और मुंह ओपन करते हैं, सीढ़ी पर चलते हैं तो ये तो अक्सर होता है, एकदम पूरा मुंह ओपन करके ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेने लगते हैं। हाँ हाँ, लेते हैं ना, सीढ़ी पर चलते हैं, उस समय ज्यादा ऑक्सीजन का जरूरत होता है, क्योंकि एनर्जी चाहिए होता है। किसके लिए एनर्जी चाहिए, फॉर डूइंग वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स। हाँ, सीढ़ी पर चढ़ रहे होते हैं तो ग्रेविटी के अगेंस्ट चलते हैं ना, तो उस समय ग्रेविटेशनल फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमको चलना पड़ता है, वर्क डन करना पड़ता है, उस समय ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है। देखो अब इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, यही हो रहा है इधर, इस एरिया का पूरा इंटरनेट जो है गड़बड़ हो गया है, तो क्लास लेने में दिक्कत है। और पूछो जल्दी, जब तक कनेक्शन में है पूछ लो। टाइम भी बीत ही चुका है, टाइम हो चुका है, लेकिन रवि शंकर पूछो जल्दी से, फिर आगे बढ़ेंगे और सभी से मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग हम पूछेंगे।
जैसे हम सभी को ऑप्शन देते हैं ना, पूछो, उसी तरह से हमको भी मिलना चाहिए आंसर। चलो रविशंकर, नहीं है, देखो इंटरनेट नहीं होने से अनम्यूट होने में दिक्कत है। हाँ हो गया, चल चल पूछो, चलो रविशंकर पूछो। यू आर अनम्यूटेड, यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। यस मैम। मैम अब मैम जो नेशनल पैकेज है और वो भी मैम बनाना जो मुंह के पास है। वो तो क्ले से बना सकते हो, अगर घर में क्ले है, वो तुम लोग खेलने के लिए जो रखते हो ना आर्टिफिशियल क्ले, उसे बना सकते हो, ये तो और बढ़िया होगा। और टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं है, हम चाहते हैं कि तुम लोग मॉडल बना करके सीखो, एकदम अच्छे से जानो। जैसे भी एक एक सामान, जो भी घर में सामान है, पहले तो कोशिश उसी से करो, जो भी घर में सामान है बस उसी से बनाने का कोशिश करो। अगर पॉसिबल है, मिल सकता है, तो ऑनलाइन तुम परचेज करके बना सकते हो, लेकिन ये टाइम ड्यूरेशन फिक्स नहीं। लॉकडाउन खत्म होने वाला है सुन रहे हैं, उसके बाद ही बनाओ, लेकिन बनाओ जरूर, क्योंकि इससे सीखोगे। ये ऐसे ही साइंस जो है, कोई भी चीज जो है ना, और स्पेशली साइंस जो है प्रैक्टिकल करके सीखोगे तो हमेशा होल लाइफ याद रहेगा। जैसे तुम लोग लाइट का एक्सपेरिमेंट किए थे ना क्लास 6 में, कितना अच्छा रहा था लाइट का एक्सपेरिमेंट। लाइट का किए थे, तुम नहीं थे रविशंकर, अभी तुम्हारा न्यू एडमिशन हुआ है, सारे बच्चे जितना 6th क्लास में लाइट चैप्टर है उसका सारा एक्सपेरिमेंट इन लोगों ने किया था। तो अब ये लोग कभी भूलेंगे नहीं। जीके का क्लास देखो, अगर इंटरनेट कनेक्ट होता है तो लेंगे, नहीं तो फिर बाद में लेंगे, शाम में लेंगे, ठीक है ना? हो सकता है शाम में लें, अगर कनेक्शन आ गया तो हम फिर ले लेंगे।